All of you, I request you to kindly switch on your camera. Okay, good morning, everybody. I am Advocate Dr. Anupam Kumar Mishra. I'll be going through the entire induction program of this virtual internship being conducted for the month of July. And in this session, I'm going to brief you in short about the steps what we have followed, why we started this internship program, and what are the benefits, and a few details about the rules and regulations. And the last thing is the question answer session. Okay. First thing, we started Lexus and Company in the year 2014, and I started this independently. I'm a first generation lawyer, and I didn't have anybody in my family who was a lawyer beforehand. So during my college time, I always had interest in litigation. However, I started after completing my law. I started this firm and started practicing independently. Honestly speaking, I when I did my internship under my senior, I never believed in virtual internship, and I really had no interest in virtual internship. As all the law student, even I used to think that virtual internship is nothing but a time pass or a waste of time. However, time changes, mind changes. When I continued my practice for a certain number of years, and this COVID pandemic taught us a lot of thing in last 1.5, 2 years. And I saw when I did a research about this virtual internship program on the Google, honestly speaking, before starting this virtual internship program, just 2 months before that, honestly speaking, I was not aware also कि ऐसा कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप हो भी सकता है या होता है लॉ में, कभी सुना भी नहीं था मैंने. And the first time when I came to know about this virtual internship program, I was taking a interview in my office with one of the law student, and in her resume it was written about 15, 16 internship program. She was just in third year in 5 year LLB and 16 internship. I was shocked. And what is this virtual internship? So I asked her that what did you do in this virtual internship? And she explained me so many things. However, after taking her interview, I realized she actually didn't do anything in all the virtual internship program. And then after that, it continued with few more candidate. And then I did a research about this, and I saw that there are so many loopholes in this virtual internship program. However, every negative thing also has some positive side. So after doing research about this, I saw that again there is a huge scope also in virtual internship, and all over India, all the courts are taking this COVID pandemic in a positive way, and they are trying to make the world digital. In fact, European countries have adopted this digital concept very soon. I mean, long back, and virtual office, virtual job,
virtual internship, virtual training, virtual school in Australia. In fact, there are so many schools who round the clock, they for the whole year they have the entire course, degree, everything online. And even the court nowadays, they are adopting this virtual court system. And I see that there is a huge scope in this virtual internship program. And yes, if organized properly, and if the entire syllabus is good, and if the pattern of the internship is good, yes, this internship has got a huge lot of scope in the future. However, there are conditions to it. The condition is, I feel personally, the first condition is that even the candidate should be so serious to take this internship program in a serious way. Because the fact is that from my last 3 years of my 3 months of my, because we started this virtual internship program 3 months back. This is the fourth batch, I believe. So, what experience I gained, that 90% of the student, 90% of the student who join virtual internship program, why I'm not telling 100%, because there are always exceptions. However, team members, can you please switch on the camera? It is feeling very embarrassing to talk like a dumb. I can't see anybody's face. Please switch on your camera. We love to talk face to face. Let me switch on the camera if possible. Am I visible? Okay, so I started this program 3 months back. And what I learned from this, that 90% of the team members who join the virtual internship program, they have only one expectation. भैया कॉलेज में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मांगा है, अब कॉलेज ने बोल दिया आप कहाँ से करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, मंथ एंड में सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा. स्टूडेंट को भी मैं पूरा ब्लेम नहीं करूंगा. कॉलेजेस, they are recommending virtual internship, but they are not promoting it. They are not explaining the benefit, and they are not giving the flexibility as well. And they are not setting up guidelines. So college की भी problem है, but yes, college को भी मैं उतना blame नहीं करूँगा, because मेरे personal experience है. स्टूडेंट को ही चाहिए होता है फ्री में सर्टिफिकेट, बिना काम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, महीने के एंड में सर्टिफिकेट मिल जाए, रिज्यूम में भर देते हैं 15-16 इंटर्नशिप. पर उनको ये नहीं पता होता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मी बीइंग अ रिक्रूटर, अब मेरे पास कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट आता है ना 5 ईयर LLB, अब वो मेरे को दिखाता है कि उसके रिज्यूम में लिखा हुआ 15 इंटर्नशिप और 10 इंटर्नशिप. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नेवर हायर दैट कैंडिडेट. 3rd ईयर के स्टूडेंट के रिज्यूम में, मी एज अ रिक्रूटर, आई डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 2 to 3 इंटर्नशिप. क्यों? रीजन है स्टेबिलिटी इशू. नो रिक्रूटर लव्स फ्रॉग. फ्रॉग हमें पसंद नहीं है. वी लव टॉर्टोइस. स्टेबिलिटी इशू नहीं है. आज आपके पास 1 महीना काम कर रहा है, कल दूसरे के पास भाग के जाएगा. एंड बिलीव मी, नो लॉ फर्म इन इंडिया कैन टीच यू, मेक यू रामजेठ मदानी in 1 month of especially virtual internship. Stability is very much required. And we do look at it. Internship कराने के लिए तो yes, all are welcome to join. However, जहाँ पे hiring की बात आती है in our backend team, no recruiter prefers that. क्योंकि सबके दिमाग में आता है यार ये कैंडिडेट तो स्टॉप गैप के लिए 1 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है, 1 महीने बाद तो भाग जाएगा. मैं 1 महीना इसको ट्रेन भी करूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने में कम से कम 1 महीना लगेगा. वैसे 1 महीना में कुछ ट्रेन नहीं किया जा सकता. एटलीस्ट यू रिक्वायर 3 months. एटलीस्ट ट्रेनिंग देने में 1 महीना तो कैंडिडेट को सेटल ही होने में लगता है. सो कोई भी लॉ फर्म सोचेगी, इवन टुमारो इफ यू बिकम एन एडवोकेट, यू विल थिंक कि 1 महीना तो इस कैंडिडेट को सीखने में लगेगा,
उसके बाद में ये बंदा काम करना शुरू करेगा मेरे लिए, और जब काम करने का टाइम आएगा तब तो ये सीख के भाग जाएगा. सो एक्चुअली आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी एंड मनी एंड रिसोर्सेज. विच लॉ फर्म विल डू दैट? लॉ फर्म छोड़ो, एक इंडिपेंडेंट लॉयर, अगर आप लोग कल इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करोगे, आपके पास कोई इंटर्न आएगा 1 महीना काम करने के लिए, 1 महीना काम करके भाग जाएगा, इवन यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड. पहला चीज. दूसरा चीज, आप भी सिखाने में 10 बार सोचोगे यार 1 महीना में इसको मैं क्या सिखाऊं, क्योंकि एडवोकेट हो आप, फुल टाइम प्रैक्टिस में हो, सारा दिन तो आपका कोर्ट में ही गुजर जाता है, टाइम आपको मिलता नहीं. अगर आप उसको सही में सिखाना चाहते हो, यू हैव टू टेक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, और वो मेहनत आप करोगे. उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट छोड़ने वाला है. आई डोंट थिंक एनी लॉयर विल प्रेफर दैट. सो एवरी लॉयर लुक्स फॉर स्टेबिलिटी. However, since आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल नॉट ब्लेम यू ऑल, बिकॉज आई नो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर में और अदर सिटीज में भी, जिनको कोई मतलब नहीं होता है स्टूडेंट सीखे ना सीखे, उनको बस बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट मीट करनी है कि हमारे बच्चे ने इतने इंटर्नशिप किए. आई हैव सीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिसेंटली आई हैव सीन so many great career counselors on LinkedIn जो कैंडिडेट को ये सजेस्ट करते हैं कि आपके रिज्यूम में वेरिएशन होना चाहिए, आपके रिज्यूम में मल्टीपल इंटर्नशिप होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल एक्सपोजर होना चाहिए. आपके रिज्यूम में जितना ज्यादा इंटर्नशिप रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू, आपकी सीवी की उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको एम्प्लॉयर उतना ज्यादा प्रेफर करेंगे. जितने कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे, जितना ज्यादा रिज्यूम में इंटर्नशिप भरोगे, आपकी डिमांड उतना ज्यादा हो जाएगी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट अग्री विद दिस. ये करियर कोच जो होते हैं उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कैंडिडेट को ये भी बताने का कि भाई स्टेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये करियर कोच जो होते हैं, ग्रेट करियर कोचेस, ये खुद ऐसे बंदे को हायर नहीं करेंगे जो लास्ट 3 महीने में 4 इंटर्नशिप कर चुका है, क्योंकि उनको पता है ROI विल बी 0, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कॉमर्स के स्टूडेंट्स, इफ ROI is 0, why will I do the investment? Simple logic, right? Yes or no, guys? क्या आप लोग करोगे? बच्चे के ज्वाइन करने से पहले ही आपको पता है 1 महीने बाद छोड़ के भागेगा, ज्ञान आपसे ले लेगा, बांटेगा कहीं और. आई एम सॉरी, इट साउंड्स अ बिट सेल्फिश, पर रियलिटी तो यही है. कल जाके आप भी वकील बनोगे, आप भी ROI देखोगे. सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट रिग्रेट टीचिंग माई टीम मेंबर्स. आई लव टीचिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एंजॉय. और जितने बच्चे भी इस इंटर्नशिप को सीरियसली करना चाहते हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी. पर यस, अगर कोई सिर्फ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए कर रहा है, देन नो, डेफिनेटली नो, नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म हैं जो अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्रमोशन के लिए भर भर के इंटर्न्स हायर करते हैं. उनको चाहिए कोर्ट में अपने पीछे पीछे लेके घूमने के लिए, और कैंडिडेट ज्वाइन भी करते हैं. क्यों? उनको 1 महीना बिताना है, अपने रिज्यूम में लिखना है. एडवोकेट को क्या चाहिए? कोर्ट में दिखाना है अपने कोलीग्स, अपने टीम मेंबर्स को, मेरे लॉ फर्म में इतने टीम मेंबर्स हैं, मेरे पीछे पीछे घूमते हैं फाइल पकड़ के. बॉस, आप लोग ये सोच लेके ज्वाइन करोगे ना, सारी जिंदगी पीछे पीछे ही फाइल लेके घूमोगे. सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों. एडवोकेट बनते हैं 2 कैटेगरी के, कुछ ऑर्डर देने वाले, कुछ ऑर्डर लेने वाले. ये आपको ही पता होगा, आपने कौन सा, आपने जब वकालत में एडमिशन ली है, व्हाट वाज योर ड्रीम? आपको ऑर्डर देने वाला वकील चाहिए बनना है या ऑर्डर लेने वाला बनना है? देयर इज नो इजी वे टू सक्सेस. अगर ऑर्डर देने वाला वकील बनना है, देन देयर इज नो शॉर्टकट. सारी जिंदगी ऑर्डर लेने वाला वकील बन के रहना है, कैरी ऑन एज इट इज. बट यस, वी आर नॉट द राइट प्लेस इन दैट केस. I have always believed in freedom, but yes, at the same time, it is not a privilege. Privilege भी एक हद तक अलाउ किया जा सकता है,
जो भी मेरे पास्ट इंटर्नशिप बैच है, जितना हो पाता है आई ट्राई टू गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी, बट यस इफ यू ट्राई टू टेक इट फॉर ग्रांटेड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिमूव यू फ्रॉम द बैच। बीमार हम भी पड़ते हैं, हमें भी प्रॉब्लम होती है, सर्टेन ओकेजन में इवन आई गेट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, and the same way my team members, and I do allow them whenever they have any genuine problem, पर genuine problem genuine लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज का सुबह आपको टास्क मिला, सारा दिन आपने कुछ नहीं बोला, रात को 9 बजे सपोज आपका असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम है, 8:45 बजे बोलते हैं सर आई एम रियली नॉट वेल, आई विल नॉट बी एबल टू सबमिट द असाइनमेंट, देन ट्रस्ट मी गाइस, that is not a genuine problem, that is negligence। नेग्लिजेंस के लिए कोई माफी नहीं होती है, आई एम श्योर आप भी नहीं करोगे। क्यों? सपोज मान लो आप एडवोकेट बने, आपने अपने ऑफिस में 3-4 इंटर्न्स हायर किए, बड़े बड़े कमिटमेंट दिए इंटर्न्स ने, यू हायर्ड देम। अब आपने सपोज 4 इंटर्न हायर किए हैं, और ऑब्वियसली जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट होती है, आप काम उसी हिसाब से उठाओगे क्लाइंट से, और क्लाइंट को कमिटमेंट भी उसी हिसाब से दोगे जिस हिसाब से आपके पास वर्कफोर्स है, राइट? अब आपने काम उठा लिया, क्लाइंट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे तो कल ही केस फाइल करना है, अब मेरे घर में बवाल हो रहा है, कल अगर मैंने केस नहीं डाला तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। या मान लो अरेस्ट के एंटिसिपेशन है एंड द पर्सन रिक्वायर्स टू फाइल एन एंटिसिपेटरी बेल। वी एज एन लॉयर हम क्या करते हैं? अवसर ढूंढते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम क्या करते हैं, भाई कल तेरी काम तो हो जाएगी, जहां पे हम क्लाइंट से 10,000 चार्ज करना है, हम बोलते हैं भाई 25,000 रुपए लगेंगे, लेकिन कल ही तेरे केस फाइल होंगे, कल तेरी एंटिसिपेटरी बेल लग जाएगी। वी टेंड टू डू दैट, राइट? हमें भी पता है वकील के पास पैसे आए, पैसे टिकते तो है नहीं, इनकमिंग आउटगोइंग सेम स्पीड में होती है, पैसे भी आपने ले लिए, पैसे भी खर्च कर दिए। अब क्लाइंट तो पता है क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या होती है, क्लाइंट उसके बाद तो मोबाइल कॉल पे कॉल शुरू कर देता है, सर मेरा काम कब होगा, एज इफ ही इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यस आई हैव टेकन द मनी, ही शुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने कैंडिडेट को काम दिया, भाई इसके बेल एप्लीकेशन बन जाने चाहिए रात को 9 बजे तक, कैंडिडेट एकदम यस सर आई विल डू इट, आई विल डू इट। 10 में से 3 कैंडिडेट ने बोल दिया हाँ सर हम करेंगे। रात को 9 बजे डेडलाइन है सबमिट करने का क्लाइंट को फर्स्ट अप्रूवल के लिए, कंटेंट चेक करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए। आपको पता है चारे के चारे कैंडिडेट का मैसेज आता है, सर वी आर नॉट वेल, किसी का बुखार आ गया, किसी का सर दर्द हो गया, किसी के एग्जाम आ गए, किसी के कुछ आ गए। आप क्या करोगे एज अ लॉयर? क्या आप लॉयर क्लाइंट को सेम चीज बोलोगे, भाई मेरे भी पेट में दर्द हो गए, और अगले दिन कोर्ट में जज साहब बोलेंगे भाई मेरे भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, आज तेरी बेल नहीं सुनूंगा। वी कांट डू दैट, राइट? वी कांट गिव द सेम एक्सक्यूज टू आवर क्लाइंट। अब क्या होता है, हमें रात भर जग के करना है, और क्लाइंट का काम होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक, देयर इज नो ऑप्शन। एज एन इंटर्न आपके पास एक्सक्यूज है, एज अ लॉ स्टूडेंट आपके पास एक्सक्यूज है, पर जिस दिन वो बैंड पहन लिया, वो बैंड तब तक मत पहनना जब तक आप उसके काबिल मत बनो, और जिस दिन वो बैंड पहन लिया मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद इट। अगर आपने उस बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करी तो वो बैंड आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, और सारी जिंदगी ऑर्डर देने वाले वकील बन के ही रह जाओगे, ऑर्डर देने वाले वकील बन नहीं पाओगे। ये प्रोफेशन देखने में जितना ही अच्छा लगता है, दिस प्रोफेशन इज इक्वली वेरी सीरियस। यस एट द सेम टाइम दिस प्रोफेशन हैज गॉट इक्वल स्कोप टू मेक यू समथिंग। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, इतनी डिग्री है मेरे पास, मैंने इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, बट बिलीव मी ये प्रोफेशन इतना अच्छा प्रोफेशन है, यू कांट इवन इमेजिन। इस प्रोफेशन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको कभी खाली हाथ नहीं रहने देगा। आपकी वो हर ड्रीम, हर एक्सपेक्टेशंस,
हर रिक्वायरमेंट्स मीट करने की पोटेंशियल है इस प्रोफेशन में। मैं आज तक कभी कोर्ट गया खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। दिस इज माई एक्सपीरियंस इन लास्ट 7 years। ये प्रोफेशन ने मुझे इतना कुछ दिया है। दैट्स द रीजन मैं इस प्रोफेशन की पूजा करता हूँ, और आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस प्रोफेशन एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इवन 1% विद दिस प्रोफेशन। एंड ना मैं अपने टीम मेंबर्स को कॉम्प्रोमाइज करने देता हूँ। अगर मुझे लगता है हमारी टीम मेंटालिटी मैच नहीं कर रही है, इट्स बेटर टू रिमूव द टीम मेंबर, बिकॉज वन रॉटन एप्पल डिस्ट्रॉयज द होल बास्केट। वो खुद तो गंद मचाएगा ही, गंद फैलाएगा भी। तो इससे अच्छा भैया आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आपके एक्सपेक्टेशन हम मैच नहीं कर पा रहे, वहां जाइए जहां पे मैच करेंगे। आप लोग बताओ टीम मेंबर्स, सपोज आपके पास इंटर्नशिप के लिए 10 बच्चे आए, आपने रोज काम असाइन किया, आज ये करो, कल वो करो, परसों वो करो। एक बच्चा ऐसा है जो कभी अपना काम नहीं करता, हर रोज उसके पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होते हैं। एक्सक्यूज ऐसे भी होते हैं जो सुन के ही आपको लगेगा बंदा सीरियसली अभी हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे आप क्या करोगे? चल भाई ठीक है, आज छोड़ दे, कल छोड़ दे, परसों छोड़ दे, ऐसे करके 1 महीने बीत जाते हैं। अगर कभी कतार किस्मत से कर भी दिया तो उसके काम ऐसे होते हैं कि वो काम अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं होता है। किसी क्लाइंट को दे दिया तो बी रेस्ट एश्योर्ड वो क्लाइंट छोड़ के भाग जाएगा। अब आप बताओ, ऐसा कैंडिडेट पूरे महीने कुछ काम नहीं करता है, महीने के लास्ट में आपको बोलता है सर आई हैव कंप्लीटेड 1 month विथ यू सक्सेसफुली, व्हेन विल आई गेट माय इंटर्नशिप सर्टिफिकेट? क्या करोगे आप लोग? सिंपल क्वेश्चन, विल यू गिव द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट टू दैट कैंडिडेट, यस और नो? कैन यू प्लीज ऑल ऑफ यू गिव मी एन आंसर? आप लोग जब वकील बनोगे ऐसे इंटर्न को कभी भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दोगे? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो। और एक बच्चा ऐसा है जो पूरे महीने मेहनत करता है, दिन रात आपके सारे इंस्ट्रक्शन सीरियसली फॉलो करता है, सीखने की कोशिश करता है, दिल लगा के काम करता है। यस, गलती होता है तो आपसे 100 बार पूछता भी है, गलती करना बुरा नहीं है। टीम मेंबर्स आप लोग गलती करो, जितना करना करो, एक सवाल मेरे से 500 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपका पर्पस सीखना होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं कि चलो सर ने काम दिया, सर से इतने सवाल पूछो कि सर फ्रस्ट्रेट हो जाए, पर मेरे ऊपर ब्लेम ना आए, सर मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, आपने मुझे सिखाया ही नहीं। वैसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल सी लॉजिक है। आप लोग सबने सीरियल जरूर देखा होगा, सुना होगा एटलीस्ट, सास भी कभी बहू थी, तो हम भी लॉ स्टूडेंट थे। ये सारी ट्रिक्स पार करके ही वकील बने हैं, तो ये सारी ट्रिक्स पता है हमें, स्टूडेंट कब कहाँ क्या एक्सक्यूज देता है। तो ऐसा अगर होता है तो पता चल जाता है। एनीथिंग डन विद बैड इंटेंशन, आज नहीं तो कल पता चलता ही है। चोर 100 दिन चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाता है। तो ऐसे इंटर्न्स को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अगर आपको सही में सीखना है, कुछ बनना है, सीरियसली इंटर्नशिप करना है, चाहे आप 1 महीना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 1 महीना I should be able to see your dedication, your interest, your willingness. I'll be most happy person to teach you. ठीक है ना? बट ऐसे जो भी टीम मेंबर जिन्होंने ये इंटर्नशिप इसलिए ज्वाइन किया है कि भाई किसी तरीके से टाइम काटो 1 महीना, लास्ट में तो सर्टिफिकेट मिल ही जाएंगे। बहुत लॉ फर्म्स ऐसे करते हैं, 100 200 इंटर्न्स ज्वाइन कराते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ दे दिया काम करने को, और उसके बाद मंथ एंड में सबको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। और कैंडिडेट भी वैसे महान महान कैंडिडेट जाके दबा के गुड रिव्यूज देते हैं लिंक्डइन में जाके। दोनों का पर्पस सॉल्व, लॉ फर्म भी खुश, उनके बारे में खूब प्रमोशन चल रही है, कैंडिडेट भी खुश, भाई फ्री में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया बिना मेहनत किए हुए। पर आप लोग वो भूल जाते हो वो कैंडिडेट करते क्या है। वो इंटर्नशिप के बारे में अपने रिज्यूम में लिखते हैं
अब वो लॉ फर्म्स जो उनको फ्री में सर्टिफिकेट दे देते हैं ना, वो भी एक चीज भूल जाते हैं कि वैसे कैंडिडेट करते क्या है, अपने रिज्यूम में 15-16 एक्सपीरियंस लिखते हैं और फाइनली जब इंटरव्यू देने जाते हैं, मेरे जैसे एडवोकेट के पास आते हैं इंटरव्यू देने, और जब उनसे 5 सवाल पूछा जाता है, अनफॉर्चुनेटली एक का भी आंसर नहीं दे पाते हैं। अब एडवोकेट पूछता है, भाई तुमने 16 इंटर्नशिप करी है, सीखा क्या है 16 इंटर्नशिप में, या 10 इंटर्नशिप करी है, क्या सीखा है? पता है वो बच्चे क्या बोलते हैं? सर हमने तो पूरे मेहनत से 1 महीना जी जान लगा के इंटर्नशिप की, पर हमारे जो सीनियर थे ना, वो इतना बिजी रहते थे ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता था सिखाने के लिए। हमें 1 महीने में कुछ सिखाया ही नहीं, हमने जो सीखा थोड़ा बहुत खुद अपनी मेहनत से सीखा है। अब बोलो बच्चे लोग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग वकील रहोगे, ऐसे बच्चे के साथ क्या करोगे? सच बताना, पूरा भले ऑकवर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, बस सच बताना, ऐसे बच्चे के साथ क्या करोगे? Sir, we won't hire them. हाँ, We won't hire them. सिंपल सी लॉजिक। तो वही है, ज्ञान बांटना कम, लेट्स कट शॉर्ट। हमने इस इंटर्नशिप को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज गॉट वेरी ह्यूज स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है। इवन कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया आर अडॉप्टिंग डिजिटल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। और जो चीज फिजिकल इंटर्नशिप में सिखाया जा सकता है उतना तो नहीं, पर यस, डिजिटल कोर्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसी बहुत सारी चीजें जो सिखाया जा सकता है। एक वकील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। इंपॉर्टेंट है, यस, इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर नॉलेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बार आपने देखा होगा, एक अच्छा सेल्समैन जो होता है उसको प्रोडक्ट के बारे में उतना नहीं मालूम होता है जितना उस कंपनी के मालिक को होता है, बट वो तो सेल्समैन है। सेल्समैन के अंदर वो स्किल होती है, मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकता है। तो अगर आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल है एंड अच्छी कन्विंसिंग स्किल है, तो अगर लीगल नॉलेज थोड़ा कम भी है, आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ कैंडिडेट टेकिंग मोर रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। दूसरी तरफ एक कैंडिडेट ऐसा है, 3 साल की वकालत, अपने डिग्री पूरी स्पेंड कर दी, मुझे जज बनना है, जुडिशरी का एग्जाम देना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबी कीड़ा बन गया, बहुत कुछ आता है। रियली नॉलेजेबल कैंडिडेट मेरे पास आए हैं, बहुत बच्चे रियली नॉलेजेबल, मतलब सल्यूट उन कैंडिडेट्स को, आई रियली गिव सल्यूट, क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है, उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली उस कैंडिडेट को जब कोर्ट में भेजा एक हियरिंग अटेंड करने, सिर से पांव तक पसीना पसीना पसीना। क्यों? पब्लिक स्पीकिंग तो आता ही नहीं है, लैकिंग इन कॉन्फिडेंस लेवल, कैंडिडेट प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया, इसके वजह से कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। कोर्ट ने क्या बोला, वकील साहब, यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई मी that the relief which you are praying in your petition, whether it is justified or not. कैंडिडेट को आता था आंसर, सब कुछ जवाब आता था, डर गया बच्चा, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। वर्चुअल हियरिंग में भी ये प्रॉब्लम होते हैं। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं, नॉलेज तो है, बात करना नहीं आता, सिंपल लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं बतौला नहीं दे पाता जज को, और कोर्ट में रिलीफ बातों से मिलता है। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम है। तो गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, there is an issue right now, I'm getting immediate message that there is an urgent hearing at 10 o'clock. Client का बार बार कॉल आ रहा है, VC है, so can we again start the meeting after 15-20 minutes या after 1 hour? Is it possible? Yes, sir. 1 hour. Yes, sir. Yes, sir. After 1 ठीक hour. है, एनीवेज ब्रीफ तो मैंने बता दिया, I'll just cut short, काम करते हैं, इसको खत्म ही करते हैं।
इंटर्नशिप का रूल ये है दोस्तों कि अगर आप इंटर्नशिप सीरियसली करोगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके इंटर्नशिप के डिटेल्स जो हैं आपने ऑब्वियसली जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा वो आप लोगों को मिल गया होगा। एंड ई इंडक्शन का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा यूट्यूब चैनल में कि एवरी डे आपके जो बैच आपने सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू योर बैच आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा एंड आप लोगों को करना होगा। एंड एवरी डे यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट। दो मैंने वर्किंग टाइम मेंशन किया है 9 to 7 6, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के भी क्लास होते हैं, अदर कमिटमेंट्स होते हैं। एक बच्चा भी रिसेंटली मिला था, सर आई एम डूइंग 7 इंटर्नशिप एट वन टाइम। वो बच्चा 7 इंटर्नशिप एक साथ कर रहा है, एक्चुअली इंटर्नशिप नहीं कर रहा है, सातों लॉ फर्म का टाइम वेस्ट कर रहा है। बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो 7 नहीं 10 इंटर्नशिप करो। अगर आपने हमारे इंटर्नशिप ज्वाइन किया तो हमारे असाइनमेंट पूरे होने चाहिए। 7 इंटर्नशिप में तो सुन के दिमाग खराब हो गया, भाई ये पढ़ाई भी कर रहे हैं क्या, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है क्या बनना है, समझ में नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी करो 10 इंटर्नशिप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे असाइनमेंट रोज के रोज सबमिट होने चाहिए एंड द डेडलाइन इज दैट रात को 11:59 से पहले आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। वीडियो असाइनमेंट जो है आप लोगों को बता दूं बच्चे लोग, वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है। एवरीबडी हैज टू डू मैंडेटरी वीडियो असाइनमेंट और आपके जो भी असाइनमेंट है सारे मैंडेटरी है। अगर आप वीडियो असाइनमेंट नहीं करोगे या रिटर्न असाइनमेंट नहीं करोगे या कोई भी असाइनमेंट छोड़ोगे, महीने के लास्ट में कुछ नहीं करूंगा मैं टोटल देखूंगा इस बैच को कितने असाइनमेंट मिले हैं, उसमें से कितने कंप्लीट किए हैं बच्चे ने। एक भी असाइनमेंट कम होगा। It's not about excuse, it's about discipline. The rule is rule. एक भी असाइनमेंट कम होगा, वन सिंगल असाइनमेंट। कभी छूट जाता है, कभी तबीयत खराब है, बीमार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीमार पड़ो, आज के असाइनमेंट कल तो कवर कर सकते हो। पर 1 तारीख का असाइनमेंट अगर 30 तारीख तक भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, दैट इज एन एक्सक्यूज। माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। Negligence is like a sin in this profession. Mistake is always excused. ठीक है ना? एक भी असाइनमेंट कम होगा, I'm telling this on a recorded meeting. चाहे आप LinkedIn में मेरे बारे में 500 नेगेटिव कमेंट लिख दो, चैट का स्क्रीनशॉट डाल दो, जो भी कर दो, जितने गाली लिख दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। I will not give the internship certificate to that candidate. नो मीन्स नो। बहुत बच्चे हैं जिनको मैं इंटर्नशिप से निकाल देता हूं, भर भर के लिंक्डइन में अच्छे अच्छे रिमार्क्स लिखते हैं मेरे बारे में। और जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था शुरू में ही, बच्चे लोग ऑर्डर देने वाले वकील बनना है या ऑर्डर लेने वाले, ये वैसे बच्चे होते हैं जिनको सारी जिंदगी ऑर्डर लेने वाले ही बन के रहना है। क्योंकि जो वकालत की डिग्री करते समय ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि मुझे ऑर्डर देने वाला वकील बनना है, उस वकील को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी प्रैक्टिस जो होती है ना उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। सेम थिंग विथ मी, मेरी प्रैक्टिस मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो जिसको जितना गाली लिखना हो, जितना नेगेटिव रिव्यू लिखना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई रियली डोंट केयर। आई विल नॉट गिव द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट टू दैट कैंडिडेट, मीन्स आई विल नॉट गिव। अगर आप लोगों में से कोई भी है जो ऐसे इंटेंशन लेके ज्वाइन किया है, भगवान भला करे आप लोगों का, पर आप लोग इंटर्नशिप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 50% पॉपुलेशन रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सीरियस बच्चे होने चाहिए जो सही में सीखना चाहते हैं। असाइनमेंट के डिटेल आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अभी आप लोगों का थोड़ा ग्रुप भी माइग्रेशन होगा क्योंकि अभी जो है ग्रुप मिक्स है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों का ग्रुप का नाम रीनेम किया है अभी, और 5 ग्रुप का लिंक 5 ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और आप लोग अपने रेस्पेक्टिव बैच जो आप लोगों ने फिल किया है उसके हिसाब से ज्वाइन कर लेना। और एक चीज बता दूं कि मैंने अभी रिसेंटली जो आप लोगों ने ई इंटर्नशिप का फॉर्म भरा है उसमें बहुत सारे ऑप्शन कॉलम मैंने मॉडिफाई किए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आप लोगों के ग्रुप में बताऊंगा, तब आप लोगों ने जब इंटर्नशिप का फॉर्म सबमिट किया होगा तो आपके पास एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आया होगा।
उस ईमेल में आप लोग देखोगे कि देयर इज एन ऑप्शन टू एडिट द फॉर्म। अभी मत करना, क्योंकि उसमें कुछ चीजें चेंजेस होनी है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जब मैं आप लोगों को बोलूंगा, तब उस मेल को सर्च करना। सर्च करने के बाद एडिट ऑप्शन पे जाना। एडिट ऑप्शन के जाने के बाद में अपने इंटर्नशिप फॉर्म को आप लोग काइंडली अपडेट कर लेना, क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ कैंडिडेट एंड द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, हमने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। तो वो सारे कॉलम को भर देना, भर के दोबारा सबमिट कर देना। बैच को भी 5 पार्ट में मॉडिफाई किया है, और हर एक बैच का इंटर्नशिप में क्या रोल होगा, क्या आपके असाइनमेंट होंगे, तो आप लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अपने बैच सबमिट कर देना। सबमिट करके स्क्रीनशॉट जो है वो भेज देना ग्रुप में कि आप कौन सा बैच सेलेक्ट कर रहे हो। और दूसरा चीज, व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसी हिसाब से 5 ग्रुप को डिवाइड किया गया। 5 ग्रुप के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोग अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ज्वाइन कर लेना उस बैच को, और पहले वाले बैच को छोड़ देना। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी अभी उसी बैच में हो जो आप बैच आप सेलेक्ट करना चाहते हो, देन यू डोंट नीड टू लीव द ग्रुप, जस्ट रिमेन इन द ग्रुप एज इट इज। अगर आप कोई और बैच सेलेक्ट करते हो तो नए बैच में ज्वाइन कर लेना, पुराने बैच को छोड़ देना, ठीक है ना। बट शॉर्टकट में पूरे मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब अपने फॉर्म को एडिट करके भरना तो अपने बैच को अपने कैपेसिटी के हिसाब से सेलेक्ट करना, जो आप लोग असाइनमेंट कर पाओ। सीरियस बच्चे लोग, यू आर मोस्ट वेलकम टू वर्क हार्ड, लर्न। डेली आप लोगों के साथ लाइव सेशन करूंगा। लाइव सेशन अटेंड करना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज ये यूट्यूब लाइव पे होगा, बट यस आई विल बी हैप्पी इफ यू ज्वाइन इट। जितना ज्यादा ज्वाइन करोगे लाइव सेशन में, जितने डाउट क्लियर होते हैं बाद में क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये सारे लाइव सेशन मोस्टली प्रैक्टिकल टॉपिक पे होंगे, ड्राफ्टिंग पे होंगे। तो आप ज्वाइन करोगे, बिलीव मी, इट इज रियली गोइंग टू गिव यू गुड नॉलेज। अगर ये इंटर्नशिप अगर आप अच्छे से करोगे, लाइव सेशन अच्छे से करोगे, आई एम श्योर जो कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा किसी इंटर्नशिप में नहीं होगा, ठीक है ना। सीरियसली करो, गुड लक। एंड अपने बैचेस सोच समझ के सेलेक्ट करना, पर जो भी बैच आप सेलेक्ट करते हो, मेक श्योर यू डू द असाइनमेंट। एक भी असाइनमेंट कम होगा, नो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो सोच लो, देन आगे प्रोसीड, ठीक है। महीने के एंड में मत बोलना सर मैंने 5 दिन असाइनमेंट की, मैंने 20 दिन की, आई रियली डोंट केयर। 30 डेज मीन्स 30 डेज। संडे को भी छुट्टी नहीं होगा। और एक चीज, 30 दिन की इंटर्नशिप में विल वर्क फॉर 30 डेज। Even I'm working on Sunday, my team is working on Sunday, so even I expect all my interns to work on Sunday. अब आप लोग interns नहीं, you are also a part of this team. अगर मैं काम कर रहा हूँ, I expect my team also to work, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 30 दिन में मुझे 60 चीजें सिखाना है आप लोगों को। छुट्टी लेने के लिए पूरी जिंदगी बची हुई है, वकील बन जाओ, पूरी जिंदगी छुट्टी है। जब मन हो छुट्टी मारो, कोई दिक्कत नहीं। अभी सीखने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। 1 महीना मेहनत कर लो। अगर सीरियसली मेहनत करोगे, आई एम श्योर नेक्स्ट किसी इंटर्नशिप में आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होगा। एंड आई एम श्योर आपको दोबारा कोई लॉ फर्म बोलेगा भी नहीं कि आपको इंटर्नशिप करना है तो फ्री में करो। अगर कोई ऐसा बोलता है फ्री में करो, मेरे पास आ जाओ ना, मैं पेड इंटर्नशिप दे दूंगा आप लोगों को, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 दिन सीरियसली करोगे इसको प्रॉपरली, मैं पेड इंटर्नशिप ऑफर कर दूंगा। आई एम श्योर इतना कुछ सीख जाओगे आप लोग। वैसे किसी और को कहीं और ज्वाइन करना है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। रिज्यूम में और 20-25 इंटर्नशिप भरो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। मीटिंग वैसे बहुत बड़ा हो गया है, मीटिंग जितना छोटा हो उतना अच्छा हो। मीटिंग इज ऑलवेज बोरिंग, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरी भी हियरिंग है, बार बार कॉल आ रहा है क्लाइंट का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। और जो अभी भी ई इंटर्नशिप वाले ग्रुप में है, बहुत बच्चों को मैंने अभी ऐड नहीं किया है। अगर आप लोगों में से कोई अगर इस लाइव सेशन में हो तो डू नॉट वरी। जो भी 1 जुलाई से ज्वाइन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अगर अभी भी आप लोगों का बैच असाइन नहीं हुआ है एंड यू आर स्टिल इन ई इंटर्नशिप बैच, काइंडली सेंड मी अ डीएम इमीडिएटली। अपना कॉलेज आईडी कार्ड, अपना नाम मेरे को इमीडिएटली भेज देना। कॉलेज आईडी भेजोगे तो उसमें नाम मिल ही जाएगा, तो सिर्फ कॉलेज आईडी भी भेजोगे और प्रेफरेंस बैच का भेज दोगे, आई विल ऐड यू इमीडिएटली इन द बैच, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस।
भारत माता की जय. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. you, sir. Thank you, sir.